Good morning. I am Rajiv Kumar, Associate Professor in Department of Physics, SKIT Jaipur. And today's topic of discussion, semiconductor laser, or we call semiconductor diode laser. So before going in diode laser, first we discuss the basic concept of semiconductor, जो कि हमने पहले 12th में स्टडी कर रखे हैं। जस्ट को थोड़ा सा हम पहले रिव्यू कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स whose electrical conductivities lies between conductor and insulator. Basically, there are two types of semiconductor, one intrinsic and other one extrinsic. Intrinsic we call pure semiconductor, there is no doping. For example, silicon, germanium, these are very famous semiconductor. And there are other semiconductor we call compound semiconductor. One is gallium arsenide, indium phosphide. In light application, in optical application, we use this gallium arsenide and indium phosphide. Second one is extrinsic semiconductor, we call doped semiconductor. So depend on the type of dopant, there are two types. One is N-type semiconductor, other one P-type semiconductor. N-type semiconductor, the majority charge carriers are electron. In P-type, the majority charge carriers are holes. Now, go energy band diagram. There are two energy band, valence band and conduction band. वैलेंस बैंड हमेशा नीचे होगा और कंडक्शन बैंड उसके ऊपर होता है। EC is the energy of the bottom of conduction band. EV is the energy of top of the valence band. And the energy separation between top of valence and the bottom of conduction is called energy gap or forbidden gap. We represent by symbol Eg. In conduction band, there are free electrons. In valence band, there are free holes and also bound electrons. Only free electrons and holes are contributed to conduct electricity in semiconductors. There are no contribution of bound electrons. In band diagram को हम simplify form में we represent by these two lines. First one is EC. EC means the bottom of the conduction. इसके ऊपर होगा हमारा conduction band. One is EV और this is EV is the top of the valence band. इसके नीचे होगा हमारा valence band. Now we move further towards diode laser. The semiconductor laser, or we call diode laser. A semiconductor diode laser is a specially fabricated PN junction device which emits coherent light when it is in forward bias. हम यहाँ पर यूज करेंगे डायोड which is specially डिजाइन होगा which emit coherent light when it is in forward bias. कैसे we will discuss. First, what are the advantages of the semiconductor laser? There are lots of advantages. One is they operate at very low power. Second one, it is portable. मतलब आप इसको easily कहीं भी यहाँ से वहाँ पर आसानी से लेकर जा सकते हैं. Third one, most important, it is very small size. We call laser torch, pointer. These are because semiconductor diode laser. It is used in optical fiber communication. We use in CD players to scan CD or DVDs, CD-ROM device, in optical readings and high-speed laser printing. We use semiconductor laser. Now, the most important point is semiconductor materials which we used in optical application. लेज़र को बनाने के लिए, डायोड को फैब्रिकेट करने के लिए
जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हम लोग यूज करेंगे उनमें 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो क्या है? वन इज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, फॉर एग्जांपल्स गैलियम आर्सेनाइड and indium phosphide. These compound semiconductors are direct band gap semiconductors. The second property is degenerate semiconductor. इसे हम कहते हैं heavily doped semiconductor material। जो 12th में हमने स्टडी किया है डोपिंग, उसे हम कहते हैं लो लेवल डोपिंग। उसमें हम 1 ppm डोपिंग, मतलब यदि हमारे पास 10⁻⁶ एटम सिलिकॉन के हैं, मतलब 10 लाख सिलिकॉन के एटम में हम केवल 1 एटम डोपेंट का ऐड करते हैं, उसे हम कहते हैं लो लेवल डोपिंग। बट इन ऑप्टिकल एप्लीकेशन वी यूज हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स। यदि हम इनका एनर्जी बैंड डायग्राम देखें तो वो इस तरह का होता है। वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन एनर्जी वर्सेस के को हम कहते हैं वेव वेक्टर। वेव वेक्टर और फोटोन में जो होता है रिलेशन वो होता है k = p/h क्रॉस। h क्रॉस इज h/2π। तो डायरेक्ट बैंड गैप में क्या होगा? टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड बोथ लाइज एट k = 0 लाइन्स। दोनों इसी लाइन पर लाइज करते हैं। तो इसमें क्या होगा? यदि कोई इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड से इस वैलेंस बैंड में जंप करेगा, क्योंकि इस कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस वैलेंस बैंड में फ्री होल है। होल मीन्स एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, दिस लूज सम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन्स। दिस इज लाइट फोटोन्स। यदि हम बात करें इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स, एग्जाम्पल्स आर सिलिकॉन और जर्मेनियम। यहाँ क्या होता है कि टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड दोनों k = 0 पे लाइज नहीं करते हैं। दे आर सेपरेटेड बाय सम वैल्यू k0। मीन्स यदि कोई इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चेंज होगा तो एनर्जी के साथ साथ उसका मोमेंटम भी चेंज होता है। इस टाइप के मटेरियल हम ऑप्टिकल एप्लीकेशन में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी लाइट एमिशन की एफिशिएंसी बहुत ही पुअर होती है। वी ओनली यूज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट, डीजेनरेट सेमीकंडक्टर। जो हम पीएन जंक्शन फैब्रिकेट करेंगे, यूजुअली हेवीली डोप्ड पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज these heavily doped we will use to achieve the condition of laser action. Now in last lecture we studied the component of laser system. First component is laser active medium, जो हम यहाँ पर ले रहे हैं heavily doped direct band gap semiconductor act as laser active medium. Next we need pumping source to achieve population inversion. Here we use forward bias current. We know forward bias or reverse bias. So forward bias is used as a pumping source. Next we use optical resolator to increase energy density of photons. Here we use highly polished surface. This highly polished surface act as mirror surface to increase energy density of photons. Now we discuss the construction part. So construction part is very simple. Here we form a schematic of PN junction diode. इस हम देख रहे हैं टॉप, इस टॉप सरफेस इज P plus gallium arsenide, plus sign for heavily doping. The bottom one is N plus gallium arsenide. And हमें मालूम है PN junction diode बनता कैसे है। We use P-type semiconductor, we use N-type semiconductor, and both semiconductors are physically joined with each other. So जिस बाउंड्री पर दोनों मीट करेंगे उसे हम बोलते हैं PN जंक्शन, और जंक्शन के नियर ही एक बनती है डिप्लेशन लेयर।
आपने 12th में पढ़ा होगा पीएन जंक्शन डायोड। तो जो मिडल रीजन, ये जो रीजन है, यहाँ बनती है डिप्लीशन लेयर। वो लेयर जहाँ ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और ना फ्री होल होगा। दिस डिप्लीशन लेयर, इसे हम बोलते हैं लेजर एक्टिव रीजन। क्योंकि जो लाइट इमिशन होगा, वो इसी लेयर से होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लेजर एक्टिव रीजन। अब देखिए आप साइज, द लेंथ इज 500 माइक्रोमीटर, width is nearly 100 micrometer and thickness is 100 micrometer. A very compact in size, so it is small in size, it is easily portable. अब देखिए ये जो सरफेस है, जिसे बोलते हैं फ्रंट सरफेस एंड रियर सरफेस, बोथ आर हाईली पॉलिश्ड सरफेस, जिससे ये और इसका जो रियर सरफेस है बोथ एक्ट एज मिरर सरफेस, ताकि हम मिरर सरफेस मीन्स बोथ बिहेव एज ऑप्टिकल रेजोनेटर। हम बाहर से कोई मिरर यूज नहीं करते हैं, हम इन्हीं सरफेस को पॉलिश करते हैं, सो दे एक्ट एज मिरर सरफेस। नाउ लुक these two surface, this surface and the back surface, both surface are rough surface, ताकि यहाँ से कोई photons emit नहीं हो। Now top and bottom, this top, here we use some metallic coating and these two contact, metal contact to apply forward bias। हमें मालूम है forward bias में हम डायोड के P प्लस को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन फॉर द टर्मिनल ऑफ बैटरी। हमने बैटरी को शो नहीं किया है, हमने केवल इसकी दो टर्मिनलों को यहाँ पर शो किया है। सो इन फॉरवर्ड बायस P प्लस रीजन इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ बैटरी एंड N प्लस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ बैटरी एंड करंट इज ऑलवेज पासिस फ्रॉम P टू N साइड। यहाँ पर हम ले रहे हैं गैलियम आर्सेनाइड एज ए होस्ट मटेरियल, उस बैंड गैप 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो कोरस्पोंडिंग वेवलेंथ इमिट होती है 8628 एंगस्ट्रॉम विच अकर इन इंफ्रारेड रीजन। ये फर्स्ट जो हमने डायोड लेजर डेवलप किया था, फैब्रिकेट किया था, उसमें हमने गैलियम आर्सेनाइड को ही हमने यूज किया था। तो एक बार हम थोड़ा इसको रिवाइज कर लें कंस्ट्रक्शन पार्ट को। सो जो हमने लिया है लेजर एक्टिव रीजन, सो लेजर एक्टिव रीजन इज ए डिप्लेशन रीजन विच इज सैंडविच बिटवीन P प्लस एंड N प्लस गैलियम आर्सेनाइड। नेक्स्ट वन, population inversion achieved by forward bias current. So as a pumping source we use forward bias current which is used to achieve population inversion. Next point, front and rear surface are polished parallel to each other and perpendicular to the plane of junction. ये जो एक्ट करेगा एज ऑप्टिकल resonator. Now top and bottom, this top and bottom surface are metallized and metal contacts are provided to pass current through the device, तभी हम population inversion को create कर पाएंगे। and remaining two faces of diode are rough surface, ताकि यहाँ से कोई फोटोन इमिट नहीं हो, हमारे फोटोन्स का लॉस नहीं हो, सभी फोटोन केवल इस फ्रंट और रियर सरफेस के बीच में टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन करते रहे, क्योंकि ये एज ए ऑप्टिकल रेजोनेट बिहेव कर रही है। नाउ वी डिस्कस थियरी एंड वर्किंग पार्ट। तो हमें ये मालूम है कि जो लाइट एमिशन प्रोसेस है वो होता है ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन अपर स्टेट टू लोअर स्टेट। हमने जो पहले बात की थी वो हमने की थी एटॉमिक लेवल की, एटम्स आर जंप फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर हम एनर्जी लेवल की बात नहीं करते हैं, हम एनर्जी बैंड की बात करते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। और सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन एंड होल, फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, होल इन द
वैलेंस बैंड। ये बातें हमको मालूम है। अब हम बात करेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी एन जंक्शन। फर्स्ट हम ले रहे हैं विदाउट बाइसिंग, मतलब हम बाहर से कोई बैटरी यूज नहीं कर रहे हैं। इस बेस पर हम एनर्जी बैंड डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए एन प्लस टाइप गैलियम आर्सेनाइड, पी प्लस टाइप गैलियम आर्सेनाइड, और इसे हम बोलते हैं पी एन जंक्शन। और ये जो लेयर है इसे हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। हमने बाहर से कोई बैटरी यूज नहीं की है। इसे हम बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस पी साइड, दिस एन साइड। अब एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी डिवाइस है यदि वो इक्वल मीडियम में है, मतलब हमने बाहर से कोई बैटरी यूज नहीं की है, कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो पूरी डिवाइस में फर्मी एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द डिवाइस। सो फर्स्ट ऑलवेज ड्रॉ फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी होगी वो पूरे डिवाइस में कांस्टेंट रहेगी, ई एफ। कब? जब हमने बाहर से कोई बैटरी यूज नहीं की। दिस साइड वी हैव जोड एन प्लस गैलियम आर्सेनाइड, दिस साइड वी यूज पी प्लस गैलियम आर्सेनाइड। अब देखिए हमें यह मालूम है एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में। तो हमेशा याद रखो जो फर्मी लेवल होगा एन साइड में वो हमेशा कंडक्शन बैंड के अंदर होगा। तो कंडक्शन बैंड के अंदर होगा, इसका मतलब हुआ जो कंडक्शन बैंड का बॉटम है वो फर्मी लेवल के नीचे रहेगा, ई सी एम। दिस इज द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, मतलब फर्मी लेवल वो हमेशा कंडक्शन बैंड के अंदर रहेगा। यदि एन साइड का कंडक्शन बैंड ऊपर होगा तो उसका वैलेंस बैंड भी कहीं ना कहीं नीचे होगा। दिस इज वैलेंस बैंड ऑफ एन साइड। नाउ जब हम बात करें पी साइड की, तो पी साइड में हमको ये मालूम है द चार्ज कैरियर्स आर होल्ड इन द वैलेंस बैंड। तो जो वैलेंस बैंड है, जो मतलब फर्मी लेवल होगा वो हमेशा वैलेंस बैंड के अंदर रहेगा। दिस इज वैलेंस बैंड ई वी पी। और वैलेंस बैंड के अंदर कौन होंगे? होल होंगे। और कंडक्शन बैंड के ऊपर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यदि पी साइड का ये वैलेंस बैंड है तो कहीं यहाँ कहीं होगा उसका कंडक्शन बैंड, ई सी पी साइड। अब हम सिंपली दोनों के कंडक्शन बैंड को फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। इनके वैलेंस बैंड को भी हम फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। ये जो रीजन बन गया, ये जो रीजन बन रहा है बीच का, इसे हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। ये जो हमने डायग्राम में दिखाया है यहाँ पर ऐसे, ये एनर्जी बैंड डायग्राम में हम ऐसे दिखाते हैं, इसे हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। ये आगे जाके हमारे लिए बिहेव करेगा एज ए लेजर एक्टिव रीजन। अब देखिए एन साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, इन एन साइड। एन साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट दिखा रहा हूँ मैं दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और पी साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स होल है, तो यहाँ बनेंगे मेरे बहुत सारे होल इन द वैलेंस बैंड, so large number of holes in the valence band। अब ध्यान से देखिए तो ये जो बीच का रीजन है इसमें ये इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ से यहाँ पर क्रॉस नहीं करेंगे, होल अपने आप पी से एन की ओर मूव नहीं करेंगे। इसे हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर और पोटेंशियल बैरियर। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमने बाहर से कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की है तो दिस इज कॉल्ड बैरियर फॉर इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज बैरियर फॉर होल। सो डोंट बी सी कि ये मेरा स्लोप नहीं है, इलेक्ट्रॉन और होल का चार्ज ऑपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसको एज ए बैरियर देखता है और होल इसको एज ए बैरियर देखता है। तो बैरियर होने से इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को अपने आप क्रॉस नहीं करेंगे, होल भी क्रॉस नहीं करेंगे, इस डिवाइस में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन यदि हमने बायस लगा दिया फॉरवर्ड बायस, तब क्या हुआ? इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट्स हैपन व्हेन वी अप्लाई फॉरवर्ड बायस। सोचो
अब क्या होगा, यदि हमने बाहर से एक बैटरी यूज कर ली और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से हम कनेक्ट करते हैं, और एन साइड में है मेजॉरिटी के सारे इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन पर बैटरी का नेगेटिव एक फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन मेरा रिपेल होगा, रिपेल होगा तो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा एन से पी की तरफ, इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर मूव करेगा थ्रू द जंक्शन। सिमिलर होल जो है पी प्लस साइन में, उस पर चार्ज है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होल बैटरी के पॉजिटिव से रिपेल होगा और ये होल पी से एन की ओर इंजेक्ट होगा, दिस क्लोज द डिप्लेशन रीजन। अब क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस लगाने से वास्तव में हुआ क्या, वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स और होल की एनर्जी को हमने इंक्रीज कर दिया, वी इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। यदि इसी को हम एनर्जी बैंड डायग्राम में देखें तो ये जो एनर्जी बैंड है ये इलेक्ट्रॉन्स के है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो यदि हम फॉरवर्ड बायस लगाएं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब ये जो बैंड है ये अप साइड में शिफ्ट होंगे। सिमिलर होल की एनर्जी इंक्रीज होगी और होल के बैंड डाउनवर्ड शिफ्ट होंगे। एक बात हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, होल की एनर्जी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, मतलब डाउनवर्ड इंक्रीज होती है। तो फॉरवर्ड बायस लगाने से वास्तव में ये बैंड अपर शिफ्ट होंगे और ये बैंड साइमल्टेनियसली डाउनवर्ड शिफ्ट होंगे। उससे क्या होगा, ये बैरियर धीरे 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 कम होता रहेगा। यदि इस पिक्चर को मैं अब यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो मेरे को ऐसा डायग्राम रिप्रेजेंट होगा। मैं पहले इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस साइड इज फर्मी लेवल, दिस साइड इज ECN, so this is ECN, this is EFN, और इसके सामने कहीं कहीं ये आ जाएगा इसका कंडक्शन बैंड, तो दिस इज ECP। इसमें यदि ज्वाइन करूँ ऐसे, यह कौन है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, large number of electrons, and these now the barrier height is decreased, electrons are moving in this side easily, so there are large number of electrons. Now simultaneously we see for whole picture, ये डायग्राम नीचे आएंगे और ये डायग्राम ऊपर जाएगा, तो बैंड ऊपर जाएगा, तो ये बैरियर भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा। यदि मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस टाइप का दिखाएगा, ये EVP and this one is EFP, उसके सामने कहीं ना कहीं दिखाएगा EVN, तो ये जो आएगा इस टाइप से। यह कौन है, लार्ज नंबर ऑफ होल्स, लार्ज नंबर ऑफ होल्स। तो मैं इसको स्टेप से सेपरेट कर दूँ तो हुआ क्या, तो यहाँ हो जाएंगे लार्ज नंबर ऑफ होल्स होगी। नाउ ड्यू टू फॉरवर्ड बायस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एंड होल्स आर मूविंग, दे क्लोज द बैरियर, दे क्लोज द बैरियर मीन्स डिप्लेशन रीजन। तो क्या हुआ, this side is N plus gallium arsenide, this side P plus gallium arsenide। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन N से P की ओर मूव करेंगे, होल P से N की ओर मूव करेंगे। तो यदि फॉरवर्ड बायस करंट बहुत कम है तो अपर बैंड में विद इन डिप्लेशन रीजन अपर लेवल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, लोअर लेवल में होल भी कम होंगे। यदि किसी भी तरह इन सुटेबल कंडीशन इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन विद होल, मतलब इलेक्ट्रॉन अपर से लोअर में जंप करे, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन हो और ये कुछ एनर्जी को लूज करे, दिस एनर्जी Eg इक्वल टू h nu photon। दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ LED।
एलईडी में क्या होता है, हम फॉरवर्ड बायस करंट बहुत कम लेते हैं, जिससे अपर लेवल पे या अपर बैंड में विद इन डिप्लेशन रीजन इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और नीचे होल कम होते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन एनर्जी रिलीज होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से। एज लॉन्ग एज वी इंक्रीज फॉरवर्ड बायस करंट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इंक्रीज रैपिडली, साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ होल इंक्रीज इन लोअर स्टेट इंक्रीज रैपिडली। यदि यहाँ होल बढ़ रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। एंड वी अचीव द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, N2 का मान हम N1 से ज़्यादा ले आते हैं। यदि फॉरवर्ड करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड करंट से ज़्यादा हो जाएगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव हो जाएगी। उस केस में क्या हुआ, यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, दिस इमिट ए फोटोन स्पॉन्टेनियसली इनिशियली, बट दिस फोटोन्स is now interact with these electrons and force these electrons to jump into lower state and emit more and more photons। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा इनिशियल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन एक बार यदि हमें फोटोन मिल गया, अब वो फोटोन लगातार इन इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप इनटू लोअर बैंड, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन से नए फोटोन इमिट होंगे। अब हमें यह मालूम है जो इलेक्ट्रॉन होल प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस विद इन द डिप्लेशन रीजन हो रहा है। इसमें क्या होगा, जब ये प्रोसेस होगा तो जो इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इसी डिप्लेशन रीजन में कन्फाइन होंगे। एंड दीज सरफेस, फ्रंट एंड रियर सरफेस एक्ट एज मिरर सरफेस। तो क्या होगा, ये फोटोन्स फ्रंट और रियर सरफेस के बीच में टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन करते रहेंगे और अपने बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उन्हें फोर्स करेंगे स्टिमुलेटेड फोटोन को एमिट करने के लिए। तो इसमें क्या हुआ, लगातार नंबर ऑफ फोटोन्स डिप्लेशन लेयर में इंक्रीज होते रहेंगे, एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज होती रहेगी। एंड these photon is coming out from the partially polished surface in form of laser beam, high intense laser beam of wavelength 8628 angstrom। तो अगर हम देखें एक ही पिक्चर में, तो मैंने एक डायग्राम बनाया ग्राफ लाइट आउटपुट वर्सेज करंट में। तो लाइट आउटपुट वर्सेज करंट, यदि करंट फॉरवर्ड करंट एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो लाइट आउटपुट भी बहुत कम है और डिवाइस बिहेव एज एलईडी एंड इमिशन इज स्पॉन्टेनियस इमिशन, लाइट इज इनकोहेरेंट। बट यदि करंट थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो गई तो वी अचीव द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड डिवाइस बिहेव एज ए लेजर, लाइट इमिशन इज कोहेरेंट लाइट। सो दोनों ही एलईडी और लेजर दोनों का स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, केवल एक डिफरेंस है, एलईडी स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड लेजर स्टिमुलेटेड इमिशन। सो थैंक यू वेरी मच।